तीन जर्मिनल लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म इज देयर, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म इज देयर, एंड इन दोनों के बीच में तीसरी लेयर हमें मेसोडर्म भी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है जिसको हम सीलोम कहते हैं. दिस इज द पाइला विच इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल. दिस इज पिंकटेरा which is commonly known as an pearl oyster. Then comes in sepia which is commonly known as cuttlefish. Another is octopus जिसको हम devil fish के नाम से भी जानते हैं. And comes in loligo which is commonly known as squid. Name the organ of animal which is excretory in function. ये animal है, ये कौन सा animal है? It is a mollusk. mollusk के अंदर भी कौन सा है? It is a phyla. अब इनके अंदर Among the given option, excretion का रोल कौन प्ले कर रहा था? गिल्स कर रहे थे? बिल्कुल सही है. Hello dear students, in today's session we are going to study about phylum Mollusca from the chapter Animal Kingdom. In this session we will study why mollusca are called so, what are their habitat, what type of symmetry they show, how many germinal layers are there, are they coelomate animal or not, what kind of digestive system they have, what type of circulation is there, what are their excretory organ, how many parts their body is divisible into, what are their characteristic feature, and end में हम deal करेंगे इसी phylum से related कुछ important questions को. So let's start with today's session. Phylum Mollusca, why named so? Because mollusca is a word which has been derived from the word molly which means soft body. Which means soft body. Mollusca ऐसे animals होते हैं जिनकी body बहुत ज़्यादा soft होती है, उसी के ऊपर इनका नाम भी रखा गया, जैसे आपको इस diagram के अंदर, इस picture के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. These are the second largest phylum of the animal kingdom. Molluscans are the second largest phylum of the animal kingdom. First largest phylum जो है, it is the Arthropoda. First largest phylum जो है Arthropoda. After that mollusca जो है that comes. Molluscans जो होते हैं they are also found in the variety of habitat, जैसे कि marine habitat के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं octopus for example. फेरिश वाटर के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं पॉन्ड स्नेल. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं फॉर एग्जांपल गार्डन स्नेल. व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री दे हैव? दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. मोलस्क जो होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन फ्यू ऑफ देम जो हैं सेकेंडरीली एसिमेट्री शो करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एसिमेट्री? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उनके अंदर हमें ट्विस्टिंग देखने के लिए मिलती है, जिसको हम टॉर्शन भी कहते हैं, जिसकी वजह से दे बिकम एसिमेट्रिकल. जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट यहाँ पे इस दूसरे पिक्चर के अंदर एसिमेट्री डेवलप हो गई है. व्हाट टाइप ऑफ जर्मिनल लेयर्स आर देयर? आर दे सीलोमेट एनिमल्स और नॉट? इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं. कितनी जर्मिनल लेयर देखने के लिए मिलती है? 3 जर्मिनल लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं. दैट इज व्हाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. सीलोम भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. व्हाट डू यू मीन बाय सीलोम? इट इज अ बॉडी कैविटी. It is a body cavity. So what kind of animals are they? These are triploblastic coelomate animal. 3 germinal layers होती हैं, कौन कौन सी? Ectoderm is there, innermost layer endoderm is there, and इन दोनों के बीच में तीसरी लेयर हमें mesoderm भी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे body cavity भी present है जिसको हम coelom कहते हैं. And this coelom is lined by the mesoderm. This coelom is lined by the mesoderm. That is why mollusks are coelomate animals. Mollusks are coelomate animal. Organ system level of organization show करते हैं ये animals. बात करें आगे, इनकी body जो होती है, it is covered by calcareous shell. Calcareous shell calcium carbonate की बनी होती है. And these animals are unsegmented animal. यहाँ पे segmentation देखने के लिए हमें नहीं मिलता है. मोलस्क के अंदर सेगमेंटेशन जनरली एब्सेंट होता है, नहीं होता है, एक्सेप्ट न्यूप्लीना के अंदर, जहां पे सेगमेंटेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है. दिस इज द न्यूप्लीना एंड दिस इज द स्नेल. इनके ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है, दिस कवरिंग इज ऑफन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कैल्केरियस शेल कहते हैं. चलो आगे देखते हैं इनकी बॉडी कितने पार्ट्स के अंदर डिविजिबल होती है. इनकी बॉडी डिविजिबल होती है 3 पार्ट्स के अंदर, एंड दीज आर हेड, muscular foot and the visceral hump.
विसरल हम के ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मेंटल या फिर पेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ओवर द विसरल हम के ऊपर। कैसी है? सॉफ्ट है एंड स्पॉन्जी है, जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। दिस ग्रीन कलर में जो यहाँ पे दिखाई गई है, दिस इज द मेंटल और पेलियम। साथ ही में यहाँ पे अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। व्हाट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देयर इज? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट मीन्स दैट इज दो सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर माउथ एंड एनस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड उनको हम कहते हैं हेपाटोपेनक्रियास। एंड जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस इज द हेपाटोपेनक्रियास। साथ ही में एनस जो ओपन होता है दैट ओपन्स इनटू अ कैविटी जिसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। ये वाला जो रीजन है, दिस इज द एनस। एज यू कैन सी, ये एनस कहाँ पे हो रहा है? इस कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। बात करें आगे तो इनके माउथ में प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एन रेड्यूला। रेड्यूला क्या है? रेड्यूला क्या है? इट इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो किस काम में आता है? इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला विद ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, जिसका पर्पस होता है फीड करने का एंड इट इज प्रेजेंट इन माउथ। आगे बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन? गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड जिनको हम टिनिडिया भी कहते हैं। गिल्स को हम टिनिडिया भी कहते हैं। अब बात आती है इनके प्रेजेंट होने की। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये? दीज आर प्रेजेंट इन अ स्पेस, और ये स्पेस कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन गिल्स का सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का ही काम नहीं होता है मोलस्कन्स के अंदर, दीज आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन ऑल्सो। एक्सक्रीशन का भी फंक्शन प्ले करती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द शेल, मेंटल एंड दीज आर द गिल्स जिनको हम टिनिडिया भी कहते हैं। ओपन कहाँ पे हो रही हैं? मेंटल कैविटी के अंदर। आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, हार्ट से ब्लड पंप होकर सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली उसके अंदर बात करते हैं, जैसे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज द हार्ट एंड हार्ट की पोजीशन कैसी होती है? इट इज डॉर्सली प्लेस्ड, डॉर्सली प्लेस्ड। एंड यहाँ पे जो आपको दूसरी लेबलिंग देखने को मिल रही है, दिस इज द हीमोसील। व्हाट इज हीमोसील? इट इज अ कैविटी जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड फिल्ड होता है। हीमोसील इज अ कैविटी फिल्ड विद द ब्लड। अब ये ब्लड कैसा होता है? ब्लड हैज कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। 1 to 2 पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम किडनी कहते हैं या फिर कीबोस ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ वजाइनस देखने के लिए मिलते हैं, दोज आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। Excretion along with the gills also takes place in few organisms with the help of an kidney or organ of vaginus, और हम उनको कीबोस ऑर्गन कह सकते हैं। इनकी ओपनिंग कहाँ होती है? इनकी ओपनिंग भी मेंटल कैविटी के अंदर होती है। ये आपको दिख रहा है, these are the kidney, और इनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है? मेंटल कैविटी के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर इज देयर? यहाँ पे अमोनिया भी एक्सक्रीटरी मैटर है, यूरिक एसिड भी एक्सक्रीटरी मैटर है। अब आती है बात अमोनिया किन के अंदर है? अमोनिया जो होता है इट इज प्रेजेंट इन एक्वाटिक एनिमल्स। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक फॉर्म्स हैं, उनके अंदर अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी मैटर, वेयरएज जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी मैटर। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमें मोलस्कन्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया देखने के लिए मिलते हैं। एंड वेयर आर दीज 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया लोकेटेड? one pair of ganglia is present in muscular foot. वन पेयर ऑफ गैंग्लिया हमें मस्कुलर फुट के अंदर देखने को मिलता है, वेयर एज 1 पेयर ऑफ गैंग्लिया हमें हेड रीजन के अंदर देखने को मिलता है, और 1 पेयर हमें जो है यहाँ पे विसरल हम्प रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया आर प्रेजेंट विद इन द मोलस्क। लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट द सेंस ऑर्गन। व्हाट आर द सेंसरी ऑर्गन्स जो हमें मोलस्कन्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहले बात करते हैं आईज की। दीज आर प्रेजेंट ओवर द स्टॉक्स जिनको हम कहते हैं ओमैटोफोर। एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा, दिस इज वन ऑफ द क्लास ऑफ मोलस्का जिसमें हमें आईज देखने के लिए मिलती है ओवर द
स्टॉक, जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, दीज आर दी आईज एंड दिस इज द स्टॉक, जिसके ऊपर सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है। और कौन सा सेंसरी ऑर्गन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द स्टैटोसिस्ट, जिनको हम लिथोसिस्ट भी कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, दे मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इनका काम होता है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फुट रीजन, एज यू कैन सी दीज आर द स्टैटोसिस्ट, इनको हम लिथोसिस्ट भी कहते हैं, जो बैलेंसिंग का काम करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करते हैं। एक और सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है मोलस्कन्स के अंदर एंड दैट इज द ऑस्ट्रेडिया। व्हाट इज ऑस्ट्रेडिया, इट इज अ कीमो रिसेप्टर या फिर हम इसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी कह सकते हैं, जो क्या काम करता है, ये वाटर के केमिकल एंड फिजिकल नेचर को टेस्ट करने का काम करते हैं। एज यू कैन सी दिस इज द ऑस्ट्रेडिया, दिस इज द ऑस्ट्रेडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सेक्सेस कैसे होते हैं, दीज एनिमल्स आर डाइशियस एनिमल, दैट मीन्स सेक्सेस जो होते हैं दीज आर सेपरेट, दीज आर मोस्टली ओविपेरस एनिमल। कैसे एनिमल्स होते हैं, मोस्टली ओविपेरस। व्हाट डू यू मीन बाय ओविपेरस, दैट इज एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, दीज आर एग लेइंग एनिमल्स। चलिए आगे बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन दे हैव। फर्टिलाइजेशन may be external or internal. External fertilization that is taking place outside the body of animal, and internal fertilization that takes place inside the body of animal. तो यहाँ पे हमें दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे हमें लार्वा देखने के लिए मिलेगा, लार्वा प्रेजेंट रहेगा। अब लार्वा प्रेजेंट रहेगा तो मोलस्कन्स के लार्वा को हम क्या कहते हैं, मोलस्कन्स के लार्वा आर नोन एज ट्रोकोफोर लार्वा। चलिए अब देखते हैं मोलस्कन्स के एग्जाम्पल्स को। दिस इज द पाइला विच इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल, दिस इज पिंकटेडा which is commonly known as an pearl oyster, then comes in sepia which is commonly known as cuttlefish, another is octopus जिसको हम devil fish के नाम से भी जानते हैं, and comes in loligo which is commonly known as squid. Next example of molluscans is dentalium which is commonly known as tusk shell. और बात करते हैं examples की, aplysia जिसको हम commonly sea hair भी कहते हैं, and then the last one which is the Chaetopleura जिसको हम chitin भी कहते हैं। अब डील करते हैं हम इसी फाइलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एनिमल हैज विसरल हम, किस एनिमल के पास विसरल हम देखने के लिए मिलेगा हमें, मोलस्कन्स के पास, मोलस्कन्स के पास देखने के लिए मिलेगा। क्यूलेक्स फर्स्ट ऑप्शन, एपिस सेकेंड ऑप्शन। क्या ये दोनों मोलस्कन्स हैं, नहीं, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, both of them belongs to arthropoda. Then comes the third option, Nereis. No, it belongs to the phylum Annelida. Then comes the fourth option, Pila. Yes, it is a mollusk. इनकी बॉडी जो होती है तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, दैट इज द हेड रीजन, विसरल हम्प एंड द मस्कुलर फुट रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज द Which of the following characteristic is not of the phylum mollusca? इनमें से कौन सा मोलस्कन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, सॉफ्ट बॉडी कवर्ड यूजुअली बाय अ शेल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेगमेंटेड बॉडी होती है क्या? नहीं होती है। सेगमेंटेशन मोलस्कन्स के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ओनली न्यूप्लिना के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। थर्ड, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सीलोम भी होता है, सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउथ ऑफ मोलस्क कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसको हम क्या कह रहे थे, दैट वाज रेड्यूला, जो कि थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे। पैरापोडिया नहीं, पैरापोडिया एनालिड्स के अंदर होता है। गिल्स प्रेजेंट थी मोलस्कन्स के अंदर, पर उनका काम क्या था, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का काम था।
हाइपोस्टोम, इसको हम नाइडीरियंस के अंदर पढ़ते हैं, मोलस्कन्स में हमने हाइपोस्टोम के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड दिस इज नेम द ऑर्गन ऑफ एनिमल विच इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। ये एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है? इट इज अ मोलस्क। मोलस्क के अंदर भी कौन सा है? इट इज अ पाइला। अब इनके अंदर अमंग द गिवन ऑप्शन एक्सक्रीशन का रोल कौन प्ले कर रहा था? गिल्स कर रहे थे, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन के साथ साथ गिल्स भी यहाँ पे एक्सक्रीशन का काम कर रहे थे। रेड्यूला, नो, रेड्यूला फीडिंग ऑर्गन था। ऑस्ट्रेडिया, नो, ये सेंसरी ऑर्गन था। नाउ ग्रीन ग्लैंड, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लेकिन मोलस्कन्स के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। थैंक यू सो मच।